morning dear students, myself Amit Yadav and today I will complete the chapter of The Portrait of Lady. In my last video I have already completed the half chapter that is written by Khushwant Singh and it is included in your book Hornbill. And I have completed till Her for the Village Dogs. Now I am starting from my grandmother always, but I am starting from my grandmother and our good friends. My grandmother and our good friends, my parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. Actually, my grandmother, यहाँ पर जो नरेटर है और उसकी जो ग्रैंडमदर है बोथ बिकम गुड फ्रेंड क्योंकि दोनों गांव में रहते थे. अब जब गांव में रहते तो साथ साथ क्योंकि इनके पेरेंट्स जो थे वो कहाँ चले गए थे सिटी में रहने के लिए. वो सिटी में काम करते होंगे and after it we were constantly together. So it is certain that the infatuation created both of them. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. And daily it was the routine of grandmother. It was the routine of grandmother that she woke him up for school. And यहाँ पर दादी माँ जो है वो सुबह सुबह उसको उठाती थी, तैयार करती थी. And after it she said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. Actually दादी माँ का काम था कि दादी माँ क्या करती थी, उसको नहलाती थी, उसको तैयार करती थी ताकि वो स्कूल के लिए जाए. लेकिन इसके साथ में दादी माँ क्या करती थी, अपनी जो इनऑडिबल प्रेयर्स थी उसको ऐसे गाती रहती थी, ताकि इसलिए गाती थी ताकि इसे उसको समझ में आए और वो उसको बाय हार्ट लर्न करे. And after it that I would listen to get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never both her to learn it. Actually ये उस दादी माँ की आवाज को लाइक करते थे जिसकी वजह से उसको सुनते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको लर्न करने का प्रयास नहीं किया. And after it then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, earthen ink pot and a red pen. Actually इसके साथ में दादी माँ को क्या करते थे, दादी माँ इनको एक स्लेट देती थी जो लकड़ी की बनी होती थी, जो प्लास्टर्ड होती थी, और साथ में चौक देती थी, इंक जो एक मिट्टी के इंक पॉट में होता था, प्लस एक पेन देती थी इसको, एंड कलर का रेड कलर का पेन था. एंड टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंडेड टू मी एंड ऑल थिंग्स were given by grandmother. grandmother उसको देती थी ताकि वो स्कूल में जाकर पढ़े. एंड उसके बाद में then she would tie them after a breakfast of a thick starch chapati with a little butter and sugar spread on it. and वो क्या नाश्ता करते थे, एक स्टार्च चपाती जो बासी रोटी से बोलते हैं वो, उसके ऊपर मक्खन जिसे बटर बोलते हैं, प्लस शुगर चीनी. एंड आफ्टर इट we went to school. Keep in your mind that दादी माँ जो ग्रैंडमदर थी वो भी उसके साथ स्कूल जाती थी, because she went there to worship God, because school was attached with temple, whereas the grandchild who was studying in the school, whereas the grandmother who was worshipping and reading the books, scriptures and prayers. एक्चुअली क्या होता था, दादी माँ जो होती थी वो जैसे कहाँ जाती थी, वो स्कूल जाती थी, और वहाँ स्कूल के पास में टेंपल था और स्कूल में खुशवंत सिंह पढ़ते थे और उनकी दादी माँ जो होती थी वो इसे मंदिर में बैठती थी. एंड आफ्टर इट शी कैरिड सेवरल स्टार chapatis with her for the village dogs. Besides this, she brought a lot of star chapatis to throw in front of village dogs. और वो बहुत सारी बासी चपातीस लेके आती थी, रोटियां लेके आती थी, काय के लिए कि उनको डालने के लिए जो विलेज डॉग्स होते थे वहां पर. माय ग्रैंडमदर ऑलवेज सेंट टू स्कूल. माय ग्रैंडमदर ऑलवेज सेंट टू स्कूल विद मी because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. I have already told you about this. Whereas the narrator who was sitting in the school
and grandmother who was sitting in the temple because both were attached. Temple and school both were attached each other. तो यहाँ पर दादी माँ थी वो कहाँ बैठती थी? वो टेम्पल में बैठती थी और जो वो होते थे वो कहाँ बैठते थे? वो स्कूल में पढ़ते थे. And after it the priest taught us the alphabet and the morning prayer. And जो priest जो पुजारी होते थे वो उनको क्या पढ़ाते थे? Alphabet and morning prayers. It is the difference between the education system of city life, city and village. In village education system you will learn alphabets and morning prayers, and in city you can find the study of modern things, modern science, English and modern subjects. And after it, when we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. और जब वो वहां से लौटते थे तो उनको दादी माँ साथ में लेके आती थी और दादी माँ के साथ बहुत सारी रोटियां होती थी, जिन रोटियों को this time the village dogs would meet us at the temple door. और जिनको वो रोटियां वो डाल देती थी, जो village dogs उसको मिलते थे वहां पर, and they followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वो जो डॉग होते थे, डॉगीज होते थे, वो आपस में लड़ते थे और वो लड़ते थे क्यों? रोटियों के लिए, और एक दूसरे को भौंकते थे. एंड आफ्टर इट दे फॉलोड. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There was no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard in our city house. Actually, जब नरेटर के फादर जो थे, पेरेंट्स वो सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने इन लोगों को भी गांव से बुला लिया. अब नरेटर और उसकी दादी माँ के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था. टर्निंग पॉइंट मींस ट्विस्ट. क्यों? क्योंकि अब दादी माँ उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहां पर वो अपने आप मोटर बस से जाने लगा, और वहां उसको जो सब्जेक्ट होते थे वो इंग्लिश मीडियम में थे. तो दादी माँ उसकी वजह से हेल्प भी नहीं कर पाई. सेकेंड थिंग, उस वहां पर गली में कोई भी विलेज डॉग मिसिंग होते थे, तो दादी माँ ने अपना जो टाइम था स्पैरोज के साथ पास करना शुरू कर दिया. स्पैरो इज अ काइंड ऑफ वर्ड, एंड दादी माँ क्या करती थी? उस स्पैरो को खिलाती थी इन द नून टाइम in the courtyard of the city house. As the years rolled by, we saw less to each other. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वो लोग आपस में बहुत कम मिलने लगे. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. और उसके बाद में वो, लेकिन वो दादी माँ क्या करती थी? उसको रोज स्कूल के लिए तैयार करती थी. And when I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब भी वो स्कूल से लौट के आता तो दादी माँ उससे पूछती थी कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, क्या तुमने किया है. I would tell her English words and little things, Western science and learning the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और ये जैसे हर बच्चे की पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चे पूछते तुम्हें स्कूल में क्या किया गया, सेम एज दादी माँ पूछती थी और दादी माँ को बताते थे कि उन्होंने आज स्कूल में मॉडर्न साइंस पढ़ाई गई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाए गए हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाई गई है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड पढ़ाए गए हैं. एंड दिस मेड हर अनहैप्पी. और दादी माँ सुन के बहुत ज्यादा अनहैप्पी होती थी, क्योंकि वहां पर क्या था, कोई भी ऐसे प्लेस नहीं था किसके लिए? धार्मिक शिक्षा के लिए, रिलीजियस एजुकेशन के लिए, रिलीजियस नॉलेज के लिए. She could not help me with my lessons. At this time, the grandmother was not able to help in his homework. दादी माँ उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी होमवर्क में. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the spirit. और दादी माँ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई ये देखकर कि वहां पर गॉड के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं होती है और ना ही कोई रिलीजन की शिक्षा दी जाती है. इस वजह से दादी माँ बहुत परेशान होती थी. And one day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. एक दिन जब वो स्कूल से आया उसने बताया कि दादी माँ आज अब मुझे म्यूजिक की भी शिक्षा दी जाएगी, म्यूजिक पढ़ाया जाएगा. तो दादी माँ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई, बहुत ज्यादा निराश हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई. क्यों?
क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मतलब उस समय जो म्यूजिक जो होता था इट इज नोन एज द मोनोपोली। म्यूजिक पर हेरलॉर्ड, हेरलॉर्ड मतलब प्रोस्टिट्यूट्स, वेश्याएं। प्रोस्टिट्यूट इज दैट वर्ड, इट मींस अ पर्सन, अ लेडी who sells his body, her body for money. So it is known as herlord. And beggars. So it is the thinking of grandmother that it is the monopoly of herlords and beggars. So why a gentlefolk can learn it? तो दादी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मतलब उनका बच्चा बिगड़ रहा है, कि मतलब उसको क्या हो रहा है कि मतलब उसको म्यूजिक सिखाया जाएगा। म्यूजिक तो वैसे बहुत डाउन ट्रॉडन लोग जैसे गाते हैं, बेगर्स होते थे, प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उस टाइम। एंड इट वाज द मोनोपोली ऑफ लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटलफॉक। जेंटलफॉक मींस कॉमन पीपल, हाई जेंट्री। एंड शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका साइलेंस का मतलब डिसअप्रूवल था। मतलब यहाँ पर वो राजी नहीं थी कि उसका जो पोता है, उसका जो ग्रैंडसन है, वो क्या करे, वो जो म्यूजिक का लेसन, म्यूजिक की नॉलेज ले। She really talked to me after that, but after some time उसने उससे बात करना बंद कर दिया, बहुत कम बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. The common league of friendship was met. अब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो उसकी वजह से इनको एक पर्सनल रूम मिल गया वहाँ पर, और पर्सनल रूम मिलने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इनको वहाँ पर अलग से जब रूम मिला तो इनकी दादी माँ के साथ जो इनकी फ्रेंडशिप थी वो भी टूट गई। एंड आफ्टर इट माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्रेशन विद रेजिग्नेशन। बस लेकिन दादी माँ ने इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, दादी माँ ने इसको बहुत आराम से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एंड शी रियली लेफ्ट हर स्प्रिंग वेज टू टॉक टू एनीवन। और दादी माँ किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा जैसे पूरे दिन अपनी से स्प्रिंग वेल, चरखा जिसे बोलते हैं, उसके पास करती थी टाइम। बट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्प्रिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। हमेशा पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक वो चरखे के सामने बैठी रहती थी, अपना चरखा चलाती थी, प्लस मॉर्निंग प्रेयर जो प्रेयर होती थी वो गाती रहती थी, और किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। एंड ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल मॉर्निंग में काम करने के बाद वो आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट लेती थी, जिससे वो जो स्पैरोज होती थी उनको से वो रोटी खिलाती थी। एंड while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, एंड छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे क्रम्स में उसको ऐसे रोटी को तोड़ती थी, उसको डाल देती थी। एंड hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। और हजारों चिड़ियां, बहुत सारी चिड़ियां आती थी, स्पैरोज आती थी, वहां पर आती थी, और उससे वो एक पागलखाना क्रिएट कर देती थी अपनी साउंड से, चहचहाने के साउंड से, चिरपिंग से। Some came and प्रीज पास ऑन हर लेफ्ट। कुछ आती थी, कुछ उसके पैरों पर बैठ जाती थी, अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उसके शोल्डर्स पर, कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे। वो बस हंसती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी को फटकारा नहीं, किसी को डांटा नहीं। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ ऑफ द डे फॉर हर। और ये आधा घंटा जो होता था वो उसकी लाइफ का, वो उसके दिन का सबसे अच्छा टाइम होता था जब वो स्पैरोज को फीडिंग करती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। और बेटा जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अब्रॉड पढ़ने जाएंगे, तो इन्हें लग रहा था कि इनकी जो ग्रैंडमदर है वो श्योरली अपसेट हो जाएगी। एंड आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और इनको वहां पर 5 years लगने वाले थे, तो इन्होंने लग रहा था कि दादी माँ जिसे जब तक ये लौट जाएगी तक मिलेगी। एंड बट माई ग्रैंडमदर कुड, शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन दादी माँ बहुत इमोशनल नहीं थी, इमोशनल बिल्कुल नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी माँ वहां आई स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन दादी माँ ने कोई भी मार्क नहीं शो किया इमोशन का, किसी भी तरीके की सैडनेस का। Her lips moved in prayer and her mind was lost in prayer. Means she was very concentrated in prayer. And after it, her fingers were busy telling the beats of her rosary. और उसकी जो हाथ थे वो क्या कर रहे थे, काउंटिंग द बीट्स। जो माला उसके बाद होती है उस माला को काउंट करते थे। And after it, her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished
the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact reveals. जब वो वहां से जा रहा था दादी माँ ने उसका फोरहेड जो उसका जो मस्तक था वो चूमा था और उसे किस किया और वही वो जो मॉइस्ट जो पार्ट था उसके मस्तक का उसको लेकर वो फिजिकल कांटेक्ट उनका था लास्ट और वो वहां से चले गया. बट दैट वाज नॉट सो. आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. जब वो 5 साल बाद स्टडी करके लौटा तो दादी माँ जो थी उसे स्टेशन पर मिली and she did not look a day older. लेकिन it was very surprising that grandmother was same as before 5 years she was. जैसे वो 5 साल पहले थी वैसे ही ग्रैंडमदर थी, उससे एक भी दिन ओल्ड नहीं थी वो. And she still had no time for words. And while she clasped me in her arms and I could hear her reciting her prayer. And now जब वो लौट कर आया तो दादी माँ ने उसको क्या किया, अपने बाहों में एम्ब्रेस कर लिया और उस समय वो दादी माँ की जो इनऑडिबल प्रेयर थी उसको ऐसे सुन सकता था क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे थी, वो दूर का बंदा दूर का पर्सन नहीं सुन सकता था. एंड आफ्टर इट साइलेंटली शी kissed my even on the first day of my arrival her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. frivolous rebukes मतलब प्यार से फटकारना, किसी को डांटना प्यार से. तो वो दिन तो था, उस दिन आफ्टरनून बहुत ज्यादा लंबे समय तक वहां बैठी और उसने चिड़ियों को बहुत लंबे समय तक खिलाया. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. इवनिंग में क्या हुआ कि उसमें क्या एक चेंज आ गया. शी डिड नॉट प्रे and it was first time in her life that she didn't pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. और उसने क्या किया, पड़ोस की लेडीज को, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद में उनको एक ओल्ड ड्रम लिया और गाना गाने लगी. For several hours she thrummed the singing strings of dilapidated drum. Dilapidated means old drum. तो उस ढोलक को उन्होंने क्या किया, वो इसे बजाने लगी, बहुत घंटों तक बजाया. एंड sang of the homecoming of warriors. और जो सॉन्ग गाए जा रहे थे वो काय पर बेस्ड थे, homecoming of warriors. जो वॉरियर्स जो लड़ाई में जाते थे अपने घर लौट कर आते थे, तो जो सॉन्ग वो जो गा रही थी वो वही सॉन्ग थे. एंड आफ्टर इट we had to persuade her to stop to avoid overstraining. और हम लोगों ने उसको क्या किया, उसको रोका बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रयास करके रोका. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे. और पहली बार ये ऐसा हुआ जब नरेटर को पता लगा कि दादी माँ ने प्रेयर नहीं की, वरना वो हमेशा प्रेयर करती थी. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल. इट वाज a mild fever and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She has said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब हम लोगों ने देखा दादी माँ में एक चेंज आ गया, दादी माँ को फीवर आ गया और डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर को तो बुलाया गया. डॉक्टर ने कहा कि अरे कि दादी माँ जो है जल्दी ठीक हो जाएगी, पीरियड फीवर हल्का. लेकिन दादी माँ को चीज पता थी कि उनका अंत समय जो है वो आ चुका है और वो उन्होंने हम लोगों को मना किया और वो नहीं चाहती थी उस समय का जो टाइम था उसको वो किसी से टॉक करके वेस्ट करे. एंड after it we protested but she ignored our protest. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. और वो लेट गई और लेट के उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपने से काउंटिंग द बीड्स, अपनी जो रोजेरी की जो माला थी उसको काउंटिंग करने लगी, जपने लगी, अटरिंग करने लगी. एंड आफ्टर इट moving and even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. एंड जब तक हम लोग को समझ पाता था उसकी लाइफलेस फिंगर्स जो थी उनसे क्या हुआ, रोजेरी की माला जो थी वो गिर गई. एंड अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड. और एक अजीब सी जो शांति होती वो उसके चेहरे पर छा गई और हम लोगों को तो पता लगा कि वो क्या हुआ, वो ऐसे मर गई. एंड वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इट इज द कस्टमरी. जैसे हिंदू रिलीजन में है, सिख धर्म में ये है कि मतलब आप अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी की तो मतलब उसको फिर बेड से उठाकर जमीन में डाल दिया जाता है. तो सेम एज डन हियर एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. उसकी डेड बॉडी को जमीन में डाला गया और बाद में उसको रेड कलर के श्राउड इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज कवर्ड द डेड बॉडी. और रेड कलर के श्राउड से उसको कवर कर दिया गया. एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स of morning we left her alone to make
अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल, और कुछ समय से उनके घर पर जैसे जो ट्रेडिशंस वगैरह होंगे वो चले होंगे। उसके बाद वो लोग लग गए उस अरेंजमेंट करने में कि इनकी डेड बॉडी को कहाँ ले जाना है, कहाँ क्रीमेशन करना है, उसकी तैयारी में लग गए। एंड इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर ऑफ टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम के समय वो एक कच्चे बांस जो होते हैं बैम्बू, उनकी एक स्ट्रेचर बना के लाए और उसको लेकर उसके पास उसकी कमरे में डेड बॉडी थी वहां पर लेकर आए ताकि उसको क्रीमेशन के लिए ले जा सके। एंड आफ्टर इट द सन वाज सेटिंग एंड हैड लेट हर रूम विद veranda and veranda with a blaze of golden light. The sun was setting and that time the room was full of light, and we were surprised that we stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shawl, and all over the veranda that is full of light. और पूरे बरामदे में क्या थी, लाइट फैल गई, रोशनी फैल गई, और जिस बरामदे में वो लेटी हुई थी। एंड आफ्टर इट देयर वाज नो चिपिंग, लेकिन वहां पर कोई चिपिंग की आवाज नहीं थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ सराउंडिंग्स, लॉट ऑफ स्पैरोज वर देयर, बट नो साउंड ऑफ चिपिंग। मींस द वर्ड्स वर आल्सो प्रेजेंट देयर टू शो देयर ट्रिब्यूट, टू शो देयर रिस्पेक्ट। और उसके बाद में वो जो स्पैरोज थी वही वहां हजारों की संख्या में बैठी हुई थी और उनका कुछ भी नहीं शोर हो रहा था, बिल्कुल चुपचाप। और ये देखकर जो उनकी जो नरेटर की जो मदर थी उनको बहुत तरस आया, उनको बहुत दुख हुआ। एंड शी ब्रोक वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माय मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर देम। और मदर, मेरी मदर जो नरेटर की जो मदर थी वो कुछ ब्रेड तोड़ के लाई थी और उस ब्रेड को उन्होंने क्या किया, उस ब्रेड को उन स्पैरोज को डाल दिया। She broke it into the little crumbs. Crumbs means part. छोटे छोटे parts में, and the way my grandmother used to and threw it to them, the sparrows took no notice of the bread. लेकिन जो sparrows थी उन्होंने कोई notice नहीं किया उसको। And when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. आज हम लोग अपनी दादी माँ की डेड बॉडी जो थी उसको ले गए वहां से, तो उसके बाद में जब वहां पर डेड बॉडी ले गए तो उसके साथ वो स्पैरो जो थी वो भी वहां से उड़ गई। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और उसके बाद जितने भी स्वीपर्स थे वहां पर, और स्वीपर्स ने जितने भी जैसे रोटी के टुकड़े थे उन सबको स्वीप करके साफ करके डस्टबिन में डाल दिया। सो नाउ चैप्टर इज फिनिश्ड। अब आपका ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। आपको कल हम आपको